friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to learn very interesting tools of Photoshop. In this video, we will discuss about crop tool and magic wand tool. You can just see where is our crop tool. Okay, just you see this is your crop tool. Okay, this is your crop tool and this is your magic wand tool. We will discuss about this. First, I would like to define this magic wand tool is also called quick selection tool. That means this is used for quick selection. Okay, clear? It is used to select the adjacent area of the same color in image. Clear? And if we talk about the crop tool, it is used to select the specific area that you want to focus on and remove the unwanted part for everything outside the selected area of a picture. So let us see how do we practically use these tools. Okay, so you can see here this is your crop tool and this is your magic wand tool. Okay, now when you select the magic wand tool, you will see the options in option toolbar. Okay, just you can see this is your tolerance, this is your anti-alias, this is your continuous. Okay, so first of all you define what is tolerance. Tolerance determines the color range of the selected pixels. The higher the tolerance, wider will be the range of the selection. Okay, now next you can see anti-alias. Anti-alias produces a smooth edge by partially filling the edge pixels. Next, contiguous. It limits the selection to adjacent pixels only. When unchecking this option, all the pixels in the image within the same tolerance range will be selected. Okay, so these are the options available in option bar related to our magic wand tool. Okay, next this is your crop tool. You can see here this is your crop tool. Okay, so let us see how we practically do this. First of all, we will learn about the magic wand tool. You open any image, just suppose I have opened it. Okay, you select the magic wand tool. Okay, now you select the magic wand tool and click on the area. You will see very small portions are getting selected. Now you increase the tolerance. Just I told you the larger will be the tolerance value, higher will be the tolerance value, larger will be the selection area. Suppose I have made the tolerance 30. So you can see the areas at once get selected. Okay, this area at once gets selected. Okay, now let us see how we fill the colors. Suppose we want to change the background color of our image. First we have to select the background by using the magic wand tool. Okay, then after you go to the paint bucket tool and select any color and fill it. You will see if it is not getting filled, press Alt plus Delete key. It will automatically filled. So you can see how I have changed the background color of our image. Clear? Next I am going to open another image. मान लेते हैं ये हमारा इमेज है, इसका हम लोग बैकग्राउंड क्या करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं. तो पहले हम लोग मैजिक वैंड टूल लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, टॉलरेंस ज़्यादा है इसलिए टॉलरेंस हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे. क्लियर? अब देखिए अभी भी टॉलरेंस ज़्यादा है मेरा. क्लियर? अभी भी देखिए अब टॉलरेंस सही हो गया. ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कीजिएगा, कोई कलर सेलेक्ट कीजिएगा और आपको कौन सा की प्रेस करना है, अल्ट एंड डिलीट. तो आप देख रहे हैं आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, फील्ड हो गया. तो अब चलिए अब हम लोग अगले इमेज पे प्रैक्टिस करते हैं. ये भी आपका इमेज है. आप क्या कीजिए, मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट कीजिए. तो ये आप क्या देख रहे हैं कि आपका ये मार्क्यू टूल, लैसो टूल से बिल्कुल अलग है. ठीक है, एक सिलेक्शन में आपका पूरा एक सिंगल क्लिक में मैजिक की तरह, जैसे जादू होता है ना, जादू की छड़ी घूमती है सारा काम हो गया, ठीक उसी तरह आपका ये जादू की छड़ी है. एक सिंगल क्लिक कीजिए और आपका पूरा पोर्शन क्या होगा इमेज का, जहां क्लिक करेंगे वो सिलेक्टेड हो जाएगा. तो आप अगर मान लेते हैं कभी ऐसा होगा कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो पिक्सल का रेंज यानी टॉलरेंस का रेंज क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे. ठीक है,
क्लियर। अब आप फिर से एक बार कलर सिलेक्ट कर लीजिए, मान लेते ये कलर हमने सिलेक्ट किया और आपको पिक्चर पे आना है और अल्ट एंटर डिलीट की प्रेस करना। देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है, कंट्रोल जेड मारेंगे, ठीक है। फिर से आप इसको सिलेक्ट कीजिए, देखिए ठीक है, ध्यान से देखिए आपका इमेज सिलेक्टेड है, क्लियर। और पेंट बकेट टूल जरूर लीजिए, देखिए ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और इमेज हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका इमेज है, देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैजिक वैन टूल लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, इतना ही सेलेक्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे हम टॉलरेंस बढ़ाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा टॉलरेंस 10 है, सपोज करो हम 30 करते हैं। अब देखते हैं, देखिए कुछ पिक्सल्स का रेंज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो शुरू में ही हमने बोला था कि आप जैसे ही पिक्सल्स का रेंज बढ़ाइएगा, सिलेक्शन का एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, वाइडर होगा, ठीक है। अभी हम लोग और बढ़ाएंगे। अब चलिए 40 कर देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। देखिए कुछ रेंज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं भाई, 50 कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये देखिए 50 करते ही क्या हो गया, मेरा इमेज का रेंज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन एरिया के रेंज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कलर वगैरह चेंज करना है। तो इस बार हम लोग पेंट ग्रेडियंट टूल ले लेते हैं। इसमें से कोई कलर ले लीजिए। चलिए हम ये कलर ले लिए और इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, देखिए ये बैकग्राउंड कलर में फिल हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने इमेज को सेलेक्ट करके मैजिक वैन टूल से उसके बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो मैजिक वैन टूल होता है वो पिक्सेल्स पे डिपेंड होता है, पिक्सेल्स को सेलेक्ट करता है, ठीक है। जैसा पिक्सल होगा वैसा ही वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो जैसे ये देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका इमेज है, ठीक है। आप मैजिक वैन टूल ले लीजिए, देखिए आपका, ठीक। अब यहाँ पे टॉलरेंस कम करने की जरूरत है, मान लेते हैं हम 25 कर देते हैं, ठीक है। 25 कीजिए, अब फिर से सेलेक्ट कीजिए, अभी भी और कम करने की जरूरत है, ठीक है। तो 25 नहीं कीजिए, आप 10 ही कीजिए। तो जैसा इमेज वैसा ही आपको क्या करना है, टॉलरेंस रखना है, ठीक है। अभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखते जाइए, चलिए देख रहे हैं। तो इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। अब जो भी कलर वगैरह इफेक्ट वगैरह डालना है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अल्ट और डिलीट प्रेस कर दीजिए, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैजिक वैन टूल का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्रॉप टूल का, ठीक है। सपोज कीजिए ये मेरा इमेज है और यहाँ पे हम ये भी सीखेंगे कि हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कलर है जिसमें आपने क्या किया है, कलर वगैरह बैकग्राउंड वगैरह फिल कर दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको कितना पोर्शन जो है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्रॉप टूल को सिलेक्ट कीजिए और जितना एरिया चाहिए उतने एरिया को माउस से ड्रैग करके क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। इस स्पेसिफिक एरिया को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए हमको पासपोर्ट साइज में इतना ही इमेज चाहिए, और जब आप सेलेक्ट कर लें तो एंटर जरूर प्रेस कीजिए। अब आप देख सकते हैं आपका ये इमेज तैयार है। अब आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है तो आप फाइल में जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑटोमेट में पिक्चर पैकेज पे जरूर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पिक्चर पैकेज ओपन हो गया है, ठीक है, क्लियर। पिक्चर पैकेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप पेज का साइज लेंगे, 3 तरह का पेज साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर आप जो पिक्चर जैसा चाहिए, देखिए यहाँ पे 4 पिक्चर्स बनेंगे। तो जो नंबर्स आगे लिखे यहाँ पर 20 पिक्चर्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 देखिए इस तरह के पिक्चर्स बनेंगे। तो जैसा पिक्चर लेंगे वैसा ही यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ओके कर देना है। देखिए आपका पिक्चर जो है रेडी हो रहा है। तो देखिए ये आपका पासपोर्ट साइज पिक्चर क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो भी क्या कर सकते हैं, MS पेंट में, सॉरी फोटोशॉप में बना सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।